Hello students, Namaste. In the last lecture, we had dealt with the grouping or combination of the capacitors. Please look up at the board. In the last lecture, we have dealt with the grouping or combination of capacitors, in which we derived the capacitance of equivalent capacitor in case of series combination. Now, please look up at the board. In the last lecture, we have dealt with the grouping or combination of resistors, capacitors. And we have dealt with the series combination. The capacitors are joined end to end. End-to-end capacitors of capacitance C1, C2, C3 are joined with a source of voltage V, and we found that we calculated the equivalent or net or effective, or we can say total capacitance of capacitors in a combination is given by reciprocal of the. In this way, we are looking for the equivalent capacitor. That means such a capacitor which withdraw the same charge, which can store the same charge as it was stored by number of capacitors in combination. Such a single capacitor which can store the charge equal to the charge stored by number of capacitors in combination is known as the equivalent capacitor. So we calculated that net, or we can say equivalent or effective, or we can say total capacitance 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on. For the number of capacitors are more, then plus and so on carry. Please look up at the board. Recall करने. In the last lecture we have dealt with this one, the combination of capacitors. Now turn page 4 to deal with the parallel combination. Look up at the board, please. Note कर ले. Now turn good for the parallel combination. Parallel combination. Turn good for this one. That means we can say ऐसा कॉम्बिनेशन की सभी कैपेसिटर्स का इनिशियल
पॉइंट्स एक और फाइनल पॉइंट्स एक होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। लुक एट द बोर्ड सिंपली, A and B, C1, C2, C3, and these are connected with a voltage V across them. Okay. जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पर इक्वल चार्ज होता है, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में all capacitors have same potential, all capacitors have same equal, कुछ भी बोलते हैं, equal potential difference between them. That means equal to source voltage, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल वोल्टेज सब पर होता है। जो V इसको वही इसको वही इसको वही इसको सब पर भी सेम। ये तो थीम रजिस्टर्स में भी सेम था, क्लास 10th में हमने किया था, जस्ट किया था क्लास 10th में। नाउ टर्न गोज फॉर द in parallel combination the net charge is equal to the sum of charges stored on each capacitors individually. In parallel combination, the net charge is equal to the sum of charges stored on each capacitor individually. That means we can say Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, and we are looking for a single capacitor. आप जानते हैं we are looking for a single capacitor known as the equivalent capacitor. That means which can store the same voltage as it was stored by number of capacitors in combination. जितना ये तीनों कैपेसिटर मिलके चार्ज स्टोर करते हैं उतनी ही सप्लाई पर अगर एक अकेला कैपेसिटर उतना ही चार्ज स्टोर कर ले सेम सप्लाई वोल्टेज पर, तो ये अकेला कैपेसिटर इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाता है। और इसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस, कुछ भी बोलते हैं। कुल मिला के तीन लोग वर्क कर रहे हैं सेम वेज पर, सेम मजदूरी पे, सेम टाइम इंटरवल में। उतना वर्क मैंने अकेले कर दिया तो मैं इन तीनों क्या कहलाऊंगा? इक्विवेलेंट। तो वही सेम कहानी है। तो वी आर लुकिंग फॉर दिस इक्वल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Q is equal to what? CV. We can say CV, C equivalent. वोल्टेज सब पर सेम है। C1V plus C2V plus C3V। V कैंसिल आउट हुआ, C1 plus C2 plus C3। इजिली आप देख गए कि C इक्विवेलेंट क्या आएगा? C1 plus C2 plus C3। तो सीरीज में अगर है तो रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिप्रोकल्स, और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स इन द कॉम्बिनेशन, सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन। ये पूरा पिक्चर है, आप नोट कर ले सिंपली। दो बातें याद रखेंगे तो हमेशा क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रूविंग भी कर लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में
सभी कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये दो बातें याद करें। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दो बातें। तीसरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू आएगी वो किसी एक सबसे छोटी वाले से भी छोटी होगी। जैसे आपने C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर्स लिए हैं सीरीज में, उनमें कोई जो सबसे लीस्ट वैल्यू जिसकी हो, जो उन तीनों का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू किसी एक छोटी लिस्ट से भी और लिस्ट होगी। तो कुल मिला के सीरीज में जो इक्विवेलेंट मिलता है वो लेस वैल्यू का मिलता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस मिलेगा आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर, उसकी वैल्यू किसी एक ग्रेटर वाले से भी मोर होगी, बड़ी होगी। सिंपली समझ लें, किसी एक सबसे बड़ी वैल्यू वाले कैपेसिटर से भी बड़ी होगी नेट इन केस ऑफ पैरेलल, और सीरीज में किसी एक छोटी से छोटी वाले से भी नेट जो रिजल्ट आएगा वो छोटा ही होगा। Now turn good for the next proving and last proving of this chapter. बड़ा प्यारा प्रूविंग है, लास्ट प्रूविंग है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। टॉपिक होगा आपका एनर्जी स्टोर्ड in a charged capacitor, या इसी को बोल दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर। भाई एनर्जी की बात कहां से आ गई? देखिए एक बात तो आप जानते हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मींस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मींस ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर को हम क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर को हमने चार्ज किया। आप मुद्दा देखिए, किसी भी चार्जिंग, जैसे जैसे आप चार्ज करते जाएंगे, आप कैपेसिटर का थीम जानते हैं ना, Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V। मोर इज द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर तो इट इज रेस्ट टू अ सर्टेन पोटेंशियल। तो वही कह रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ चार्जिंग, at any instant of charging, there is potential difference, there is क्या potential difference between the plates of capacitor। ध्यान समझेंगे, between the plates of capacitor। तो क्या होगा, अब अगर आप और चार्ज करना चाहते हैं, सो टू चार्ज द कैपेसिटर मतलब क्या, ट्रांसफर करने के लिए चार्ज को। सो देयरफॉर टू ट्रांसफर चार्ज दैट इज टू चार्ज द कैपेसिटर, वर्क मस्ट बी डन, और यही जो वर्क करेंगे यही स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से खूब समझ लें, वर्क मस्ट बी डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, यही वर्क डन क्या होगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज
पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, जैसे ही आप चार्ज करना शुरू करेंगे पोटेंशियल रेज होगा, और चार्ज करना चाहेंगे तो जो पोटेंशियल डेवलप हो चुका वो फर्दर चार्ज को अपोज करेगा। तो आपको फर्दर चार्ज करना है तो डेवलप्ड पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना होगा, वही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। आइए प्रूविंग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने मान लिया लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ चार्जिंग, एट एन इंस्टेंट ऑफ चार्जिंग Q be the charge on capacitor, Q be the charge on capacitor and the potential between plates is given by V equal Q by C. Okay. Now to transfer charge, to transfer further charge dq, small लेंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे, further charge dq, work done is given by क्या होगा, dw इक्वल टू v इंटू dq। अरे भाई तो ये तो अभी इलेक्ट्रिसिटी पर है ना, v इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो dv इक्वल टू dw इक्वल टू v इंटू dq। दैट मींस वी कैन से कि q बाई c इंटू dq। अब देखिएगा स्मॉल चार्ज की बात हो रही है, पूरे चार्ज करना होगा तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपली देखो, the total increase in the total increase in potential energy of capacitor in charging from Q इक्वल 0 टू Q इक्वल Q तक कितना वर्क करना पड़ेगा, सिंपली आपको देख लो ना, W इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ पूरा dW। दैट मींस वी कैन से W इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C विद रिस्पेक्ट टू Q फ्रॉम 0 टू Q। इंटीग्रेशन की पूरी थीम आप जानते हैं, 1/c को बाहर लेंगे, q का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q फ्रॉम 0 टू q। इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, पावर में एक ऐड होगा वही नीचे आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे तो ये जो w है, यही ये w इज इक्वल टू u हुआ और ये हुआ q स्क्वायर अपॉन 2c। दिस इज द electrostatic potential energy in a charged capacitor। Simply, electrostatic potential energy in the charged capacitor। ध्यान से देख ले, निहार ले मोती जैसे आंखों से अपने और नोट कर ले, यही पूरी कहानी है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की। इजीली नोट कर ले, जहां भी समझना आया वहां क्रॉस क्वेश्चन करिए, कमेंट करिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर। जैसे ही आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करोगे, चार्ज करने का मतलब ही हुआ एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर आप चार्ज को ट्रांसफर करना, यही तो हुआ चार्ज करने का मतलब। तो जैसे ही आपने चार्ज करना शुरू किया, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो और चार्ज करने का विरोध करेगा, और आपको फर्दर चार्ज करना है 0 से मैक्सिमम तक, तो वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। वही वर्क डन क्या होगा, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। रायता बस है, प्रूविंग्स के स्टेप तो 2-3 पॉइंट है केवल, dw इक्वल टू v dq इंटीग्रेट कर दिया बस। प्रूविंग के स्टेप तो बहुत छोटे से हैं, रायता ज्यादा है, ध्यान से समझिए।
आराम से नोट कर ले, कोई जल्दबाजी नहीं है। Now turn goes for the other forms. अदर फॉर्म्स पे क्या करना है, आप मेन फॉर्मूले को ही कन्वर्ट करते जाए, आप मेन अदर फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। सपोज आपने मेन फॉर्मूला क्या मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड 1/2 q स्क्वायर बाई c। अब चूंकि c को क्या बोलते हो, q बाई v बोलते हैं ना, आप पुट करिए, इसलिए u कितना आया, ये तो मेन फॉर्म हुआ, इसलिए u क्या आया, हाफ q स्क्वायर अपॉन c की जगह क्या लिखेंगे, q बाई v, कैंसिल आउट हुआ, तो u इक्वल हाफ q v आया, u इक्वल हाफ q इंटू v, ये भी एक फॉर्मूला हुआ। और एक फॉर्मूला आप देख लीजिए, जो ऊपर वाला q है उसको c भी बोल दीजिए, तो रखिए u इक्वल हाफ, इसमें रख रहे हैं फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट में, यहां भी फ्रॉम फर्स्ट में, हाफ q स्क्वायर मतलब cv होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, एक c कैंसिल होगा, तो क्या आया, हाफ q की जगह क्या रखेंगे, c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, एक c कैंसिल होगा, हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। जैसी क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, चार्ज और कैपेसिटेंस पता है तो ये यूज करेंगे, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज पता है तो ये यूज करेंगे, कैपेसिटेंस और वोल्टेज पता है तो ये यूज करेंगे, सिंपल ही। Now turn to for the electrostatic field energy known as the energy density। एक नया टर्म आएगा एनर्जी डेंसिटी का, अरे डेंसिटी से लगेगा नीचे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी होगा। थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी के बारे में। जी बताइए भैया, बताइए हम जरा सा एक जगह बिजी थे, हम आपको फोन करते हैं। अभी क्लासरूम में था मैं, लेक्चर रूम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, दैट मींस एनर्जी डेंसिटी, एक नया टर्म हमें बात करनी है इस पर। अच्छा एक बात आप ये समझिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इन फैक्ट एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor। ठीक है,
अब एक नई बात समझिए, यही दिस द एनर्जी स्टोर्ड per unit volume of space between plates of capacitor is called energy density. The energy stored per unit volume of capacity space between plates of capacitor is called energy density. चूंकि आप जानते हैं हाफ U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर. For a parallel plate capacitor, C इक्वल टू कितना लेंगे, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, जानते ही हैं, ठीक है. एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स V इक्वल A इंटू D, ये वॉल्यूम है. नाउ एनर्जी डेंसिटी क्या आया, एनर्जी डेंसिटी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल क्या आया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U अपॉन वॉल्यूम. तो म्यू इक्वल्स क्या आया, हाफ एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इंटू V स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम के लिए क्या बोलेंगे, AD. ध्यान समझिए, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D C का फॉर्मूला हुआ, और V को आप क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम को भी आप पोटेंशियल को भी बोल सकते हो, आप पोटेंशियल क्या बोल सकते हैं, या हाफ ए तो कैंसिल आउट हुआ, एप्सिलॉन 0 अपॉन D स्क्वायर इंटू V स्क्वायर क्या बोल देंगे आप, V को E इंटू D नहीं बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, D स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आपका म्यू स्क्वायर का फॉर्मूला आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये भी एक प्रूविंग, अच्छी प्रूविंग है, इसको नोट करें. हाफ एप्सिलॉन 0 कैपिटल E स्क्वायर, यही है एनर्जी डेंसिटी. यूनिट क्या होगी, अरे भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या बोलेंगे, जूल एनर्जी हो गई, और पर यूनिट वॉल्यूम तो जूल पर मीटर क्यूब, यही ना इसकी यूनिट होगी, जूल पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट होगी. सिंपल. नोट कर लें, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. This is the last topic of the electrostatic section, and now all the derivations of the section electrostatics are completed. Okay, namaste to all of you. Thanks for today. Namaste.